शुरुआत की, जिसका नाम हमारा संविधान हमारा सम्मान रखा गया। इस उत्सव को क्षेत्रीय स्तर पर ले जाने के लिए पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम 9 मार्च को बीकानेर में आयोजित किया गया और इसी श्रृंखला में दूसरा कार्यक्रम आज यानी प्रयागराज में आयोजित किया गया है। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी मंचासीन सभी अतिथिगणों का कि वो दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज के कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करने और सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं न्याय विभाग के सचिव श्री राजकुमार गोयल जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। Respected Shri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Minister of State, Law and Justice, Independent Charge, and Minister of State for Parliamentary Affairs. Honorable Mr. Justice Arun Bansali, Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad. Honorable Mr. Justice Manoj Kumar Gupta ji, Executive Chairman, UP Legal Services Authority. Esteemed secretaries, senior officials of various ministries, departments and government organizations, President, Vice President and advocates of Bar Association of High Court of Allahabad, Vice Chancellor, members of the faculty and the students of Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj. Friends from media, ladies and gentlemen, namaskar and very good evening. It is my privilege to welcome you all on this occasion in our endeavor to celebrate our country's entry into the 75th year of Republic on 26 January 2024. It is an immense honor to stand before you today in the historic city of Prayagraj, a city that holds a special place in the heart of our nation. I believe that Prayagraj does signify a fitting backdrop to recommit ourselves to the constitutional values, ideals and principles handed over to us by our constitution makers. I would like to convey my gratitude to our Honorable Minister, Law and Justice, Independent Charge and Parliamentary Affairs, Shri Arjun Ram Meghwal ji,
who agreed to be the chief guest on this occasion despite his very busy schedule. It is his exemplary vision and leadership that has helped us to conceive and design today's second regional event on the campaign of Hamara Samvidhan, Hamara Samman. I welcome you, sir, on behalf of the entire Department of Justice. Now I would like to very warmly welcome Honorable Mr. Justice Arun Bhansali ji, Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad, whose contributions to the legal fraternity is, if I may say so, unparalleled, and his judgments have exemplified the highest standards of judicial excellence. I also extend a very warm welcome to Honorable Mr. Justice Manoj Kumar Gupta, who is the Executive Chairman of UP Legal Service Authority. I can see some of the officials from NALSA, they are present here. I heartily welcome all our esteemed guests present here, the Legal Academia, representatives from the bar, advocates, young law students, tele-law functionaries, and volunteers who have joined us physically and digitally. Commemorating this grand occasion, Department of Justice has introduced a pan-India year-long jubilation under the campaign titled Hamara Samvidhan, Hamara Samman. This campaign aims to enhance awareness about the Indian Constitution, sensitize the citizens on their legal rights, duties and responsibilities, and reinforce the principles of Panch Pran and constitutional values in one's life. It is believed that an informed citizen is a building block for a developed nation, and such a concerted endeavor from everyone would enable every citizen of the country to become an informed citizen. This program, which was launched on 24th January this year, with a vision to garner enriching support at the regional level and graduating to a citizen-centric campaign. Regional events and various sub-campaigns and activities have been designed for the entire 1 year. To enhance the outreach of this campaign, Hamara Samvidhan, Hamara Samman dashboard has been created through which anyone could view the previous and ongoing sub-campaigns and activities and also participate in various activities therein. Welcoming the citizens' engagement into the campaign and stimulating it with renewed energy, various competitions have been conducted online with active support from a very popular platform called MyGov. Today's occasion will witness and felicitate the winners of the online competitions under the sub-campaign Nav Bharat, Nav Sankalp, under various categories called Samvidhan Quiz, Panch Pran Anubhav, Reel Making, and Panch Pran Rangotsav, which is poster making. On this occasion, the acknowledgements are also due to the volunteered and sustained efforts of the advocates in rendering pro bono services to the needy and unrepresented members of the society. The Department of Justice has opened a new vista in 2020, which is 4 years ago, called the High Court Panel of Pro Bono Lawyers to promote pro bono legal services under its banner, which is popularly known as Nyaya Bandhu. We complement our over 180 pro bono advocates from the High Court of Judicature at Allahabad, who have come forth to offer their services and time as a part of the Nyaya Bandhu movement. Ladies and gentlemen, the Department of Justice plays a crucial role in facilitating the administration of justice and has been making
significant contribution in creating, upgrading and modernizing judicial infrastructure, establishing fast-track special courts, ensuring robust contract enforcement regime for ease of doing business, leveraging technology to next higher level through e-courts, projects for futuristic end-to-end digital paperless courts for enhancing ease of justice and by focusing on access to justice and enabling legal aid to poor and downtrodden members of the society. Through its various initiatives, the Department of Justice is committed to enable justice for all as its goal that complements seamlessly the principles of Hamara Samvidhan, Hamara Samman, fostering inclusivity, accessibility and skilling for prompt delivery of justice. I thank you all today for your gracious presence and invite you all to join in the celebration of the regional event on Hamara Samvidhan, Hamara Samvidhan. Jai Hind. Thank you. धन्यवाद महोदय। भारत को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की साझी है। नव भारत नव संकल्प अभियान के तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और माईगव द्वारा 3 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मैं अनुरोध करूंगी सम्माननीय मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि कि वो इन विजेताओं को पुरस्कारित करें जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम शुरुआत करेंगे संविधान क्विज से। संविधान क्विज में कुल 1000 विजेताओं को पुरस्कारित किया जाएगा, लेकिन यहाँ आज हमारे बीच उस प्रतियोगिता की तीसरी विजेता उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें और जसवीर चौधरी, थर्ड इन द क्विज। अगला पुरस्कार पंचप्रण अनुभव रील प्रतियोगिता, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रतियोगिता है और इसके बीच हमारे यहाँ इसके पहले विजेता उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें शशि लाहोटी। अगली प्रतियोगिता पंचप्रण रंगोत्सव पोस्टर प्रतियोगिता। हमारे बीच यहाँ इस प्रतियोगिता के 8 विजेता उपस्थित हैं। शुरुआत करते हैं तीर्था, पहला पुरस्कार। उत्कर्ष शुक्ला, पहला पुरस्कार। अगला पुरस्कार अमर रायदास, पहले विजेता। जोरदार तालियों से सभी विजेताओं की हौसला अफजाई करें। इसी श्रृंखला में दूसरा पुरस्कार अर्जित किया है श्रेया ने। दूसरा पुरस्कार अर्जित किया है लावण्या ने। इसी श्रृंखला में तीसरे पुरस्कार को अर्जित किया है पीयूष ने। तीसरा पुरस्कार अर्जित किया है सौरभ ने। और तीसरे ही पुरस्कार को अर्जित किया है जिया ने। मैं बताना चाहूंगी इन प्रतियोगिताओं में पूरे भारतवर्ष से हजारों नागरिकों ने भाग लिया। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी विजेताओं के लिए और उन सभी प्रतिभागों के लिए जो हमारे साथ आज ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी के माता पिता के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को आगे भेजा, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी का धन्यवाद एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। आगे बढ़ते हैं। न्याय विभाग ने 2021 में एक योजना दिशा, जिसका नाम डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम जरूरतमंदों को प्रो बोनो कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। प्रो बोनो यानी निष्काम भाव से अपनी सेवाएं प्रदान करने का अवसर देता है। मैं अनुरोध करूंगी श्री राजीव भारती, रजिस्ट्रार इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कृपया मंच पे आए और प्रो बोनो के संदर्भ में कुछ शब्द साझा करें।
मंचासीन माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, माननीय अरुण भंसाली जी, मुख्य न्यायाधिपति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, माननीय मनोज कुमार गुप्ता जी, कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री राजकुमार गोयल, सचिव विधि एवं न्याय मंत्रालय, श्री नीरज कुमार त्यागी जी, संयुक्त सचिव विधि एवं न्याय मंत्रालय, सभागार में उपस्थित माननीय न्यायमूर्तिगण, हाईकोर्ट एवं सिविल कोर्ट एसोसिएशन के सम्मानित अधिवक्तागण, केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि, सम्मानित अधिवक्तागण, सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, पुलिस अधिकारीगण, मीडिया कर्मीगण, प्रिय छात्रों, देवियों और सज्जनों, प्रयागराज ब्रिटिश काल से ही कानूनी उत्कृष्टता का केंद्र रहा है, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक है। इस शहर ने भारत के अनेक प्रतिष्ठित कानूनी विद्वानों को जन्म दिया है, जिसमें प्रसिद्ध न्यायाधीश, वकील और विधिवेत्ता शामिल हैं। शहर की समृद्ध कानूनी विरासत ने प्रो बोनो कानूनी सेवाओं की संस्कृति को भी समृद्ध किया है। और ऐसे समय जब भारत सरकार के न्याय विभाग ने न्याय बंधु पहल की शुरुआत की है, तो मुझे आप सभी के साथ यह साझा करते हुए प्रसन्नता भी हो रही है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्याय बंधुओं के उत्कृष्ट पैनल का एक्सेस टू जस्टिस के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने का प्रथम एक उच्च न्यायालय बना है। आज के शुभ अवसर पर मैं अप्रैल 2017 में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई न्याय बंधु पहल की सराहना भी करना चाहूंगा, जिसका उद्देश्य समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल अर्थात उनके लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के राज्य के संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करता है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसी संस्थागत संरचना स्थापित करना है जो भारत में निःशुल्क न्याय की संस्कृति को बढ़ावा देगी और न्याय बंधु का उद्देश्य देश भर में प्रो बोनो कानूनी सेवाएं के वितरण की एक रूपरेखा भी प्रदान करेगी। विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 12 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन और वंचित आवेदकगण मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह पाने के लिए हकदार हैं। इसी उद्देश्य को चरितार्थ करने के परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी न्याय बंधु योजना वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा, जिसमें एंड्रॉयड, iOS और उमंग प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, जिनके द्वारा इच्छुक अधिवक्ताओं का पंजीकरण किया जा रहा है। न्याय बंधु वेब पोर्टल पर अब तक उत्तर प्रदेश राज्य से कुल 704 विद्वान अधिवक्ताओं का पंजीकरण हुआ है। इससे पूर्व महानिबंधक पोर्टल रजिस्ट्रार जनरल के पोर्टल पर वर्ष 2019 तक केवल 5 अधिवक्ताओं का पंजीकरण हुआ था। वहीं आज की तिथि में यह तिथि माननीय उच्च न्यायालय के संबंध में लगभग 125 है। इनमें से अधिकतर अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में वकालत करने का लगभग 10 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है तथा इनमें से कुछ अधिवक्तागण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अतः लाभकारी को अनुभवी अधिवक्ताओं से विधिक राय और सलाह निःशुल्क प्राप्त हो रही है। यह इस बात को दर्शाता है कि अधिवक्ताओं में निःशुल्क विधिक सेवा प्रो बोनो कार्य करने की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। न्याय बंधु के रूप में कार्यरत कुछ अधिवक्ताओं के अभिमत भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन्होंने न्याय बंधु योजना की प्रशंसा करते हुए इसे अनमोल सौगात के रूप में उन्होंने इसको अनुभव किया है। उनके अनुसार ऐसी योजनाओं से आम जनमानस तथा अधिवक्ताओं में न्याय व्यवस्था के प्रति आशा और विश्वास जागृत होता है। आज के गतिमान समाज में ऐसी पहल अधिवक्ताओं में मानवीय दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने में भी सहायक होती है। ऐसे न्याय बंधुओं की प्रशंसा करते हुए उनके साथ मेरी यह भी कामना है कि यह पहल आगे और विकसित होकर एक विशाल काय छत्र का रूप लेगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि ए बर्न कैंडल दैट्स लाइट एंड अदर नोज नथिंग। तो इस संबंध में जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो न्याय बंधु रूपी एक दीपक की लौ जलाई है, उसका सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों को तथा दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मोबाइल व टेलीकॉम द्वारा सुगम एवं निःशुल्क न्याय प्रदान करने में सहायता मिलेगी। वर्तमान में 24 राज्यों की बार काउंसिल्स में
लगभग 11,146 अधिवक्तागण द्वारा सीधे पंजीकरण कराया गया है तथा वर्तमान में हमारा लक्ष्य 35,000 से अधिक अधिवक्ताओं को न्याय बंधु के रूप में सूचीबद्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं में निःशुल्क विधिक सेवा कार्य करने के परिवर्तनकारी प्रभाव को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा देश के विभिन्न विद्यालयों और यूनिवर्सिटीज में प्रो बोनो क्लब स्कीम नामक एक उप मॉड्यूल की शुरुआत भी की है। भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों में 89 विधि विद्यालयों ने अपने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रो बोनो क्लब की शुरुआत की है। वर्ष 2025 तक देश के लगभग 100 विद्यालयों को पीबीसी के अंतर्गत शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा वर्ष 2022 से एकीकृत विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नालसा के साथ भी समझौता किया गया है, जिसके अंतर्गत 27 स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के अंतर्गत आने वाले डीएलएसएल लेवल पर भी 3159 न्याय बंधु अधिवक्ताओं का पैनल बनाया गया है, क्योंकि तीव्र एवं गुणवत्तापूर्वक न्याय प्रणाली कानून के शासन में लोगों का विश्वास सुदृढ़ करती है। न्याय बंधुओं द्वारा दिए गए समय और सेवाओं के प्रति उनकी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा कि खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएगी। अंत में मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि न्याय बंधु के माध्यम से जो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की जो पहल एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल के अंतर्गत ये शुरुआत की गई है, ये हमारे सुदृढ़ बेहतर भविष्य का निर्माण करेगी। डॉक्टर अम्बेडकर की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सफलता कभी पक्की नहीं होती, सफलता कभी पक्की नहीं होती तथा असफलता कभी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी कामयाबी इतिहास न बन जाए। इस महत्वपूर्ण कार्य का समर्थन करने के लिए धन्यवाद महोदय। संविधान सबके लिए, इस वास्तव को साकार करने के लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से अनुरोध करूंगी कि वे रिमोट पे क्लिक करके हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल का उद्घाटन करें। आगे मिलकर इस पोर्टल का उद्घाटन करते हैं। संविधान केवल वकील का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का वाहन है और इसकी भावना हमेशा युग की भावना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य साकार तभी होगा जब देश का हर एक नागरिक न सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति बल्कि अपने कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक होकर सशक्त बनेगा। इसलिए न्याय विभाग भारत सरकार देश के जन जन तक संविधान की अलख जगाने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान पूरे जोर शोर से चला रही है। अब हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इसका मकसद संविधान संबंधी जानकारी को सरल तरीके से जन जन तक पहुंचाना है। इस पोर्टल पर संविधान खासकर न्यायिक समानता संबंधी सभी तरह की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस पोर्टल पर लॉगिन की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लोग अपना अकाउंट बनाकर संविधान के अनुसार नागरिकों को सशक्त बनाने वाली गतिविधियां जैसे फोटो, वीडियोस, ब्लॉग, नुक्कड़ नाटक, रील्स, इवेंट आदि अपलोड कर सकते हैं। इन गतिविधियों को देखकर सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसे अपने दोस्तों और अन्य लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। जनता को प्रोत्साहित करने के लिए स्कोर की सुविधा भी है। सबसे ज्यादा योगदानकर्ता को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो आइए देश के सभी नागरिक, मंत्रालय, कानून के विशेषज्ञ, विद्यार्थी, एनजीओ आदि सभी इस पोर्टल से यूनिवर्सिटी एंड फैकल्टी मेंबर्स, dignitaries, ladies and gentlemen, we have gathered here at this second regional event at Prayagraj, which is to observe, celebrate and hail the pan-India level campaign titled Hamara Samvidhan, Hamara Samman of the Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India, which is to further commemorate the 75th year of India
as a sovereign republic. The Indian Constitution is the bedrock of our democracy, enshrining the fundamental rights and freedoms that we as citizens are entitled to. Yet, far too often, these rights remain unknown or unclear to many in our society. This program seeks to change that, to ensure that every Indian, regardless of background or circumstances, is fully aware of the protections and responsibilities outlined in our Constitution. The Constitution of India envisages the three organs of the state, namely the legislature, the executive, and the judiciary, which are also known as the first, second, and third estates. The Constitution segregates their role and sets boundaries, and it is expected that these organs demonstrate cooperation and harmony in their day-to-day functioning, so that the constitutional machinery functions without obstruction and hurdles. Having said that, I, without hesitation, that the media, which includes the print and electronic media and the organized civil society, are the fourth and fifth estate of the country, on which there is a sacrosanct duty to ensure that the constitutional ethos and values are preserved, protected, and insulated. It is this very fourth and fifth estate, which is the media and the civil society, which, along with other aforesaid organs, play a role of paramount importance in empowering and educating the masses, including the people hailing from lower socio-economic strata of the society. The duty to empower the citizens, create awareness as to rights and duties, which according to John Salmond are correlated, as every corresponding right has a corresponding duty, is an important and sacred task which all the estates have to scrupulously perform. As the executive chairman of the State Legal Services Authority, I have seen firsthand the transformative impact that awareness and access to legal knowledge can have. In a recently held Lok Adalat on 13th of this month, we have achieved outstanding results. We are succeeded in disposing of 8,42,893 pre-litigation cases, 11,13,732 cases which are pending trial, and the total disposal is 95,43,630. The amount which is settled is a staggering figure of 1,174 crores. When our citizens understand their rights, they are empowered to stand up for themselves, to seek justice, and to play an active role in upholding the rule of law. This program is a vital step in that direction. By reaching out to communities across the country, by conducting workshops and awareness campaigns, we can ensure that the values and principles of our Constitution become truly reflective of the lived expectations of all Indians. Indeed, the theme of this celebration, Hamara Samman, Samvidhan Hamara Samman, captures the essence of what we are striving for. The Constitution is ours. Its protections and provisions belong to each and every one of us. And by understanding and exercising our rights, we can truly honor and uphold the dignity and respect that the Constitution guarantees. My friends, as we gather here today, let us rededicate ourselves to this important cause. Let us work together to spread the message of constitutional awareness,
to empower our citizens and to build a society where the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity are not mere words on paper, but a living, breathing reality. Thank you and Jai Hind. धन्यवाद महोदय। देवियों और सज्जनों, बिना किसी देरी के मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली जी को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। Shri Arjun Ramji Meghwal, Honorable Union Minister for Law and Justice, Independent Charge, my brother Justice M.K. Gupta ji, Executive Chairman, UP State Legal Services Authority, sister and brother judges of the Allahabad High Court, Shri Rajkumar Goyal, Secretary Justice, Shri Neeraj Kumar, Joint Secretary, Access to Justice, Vice Chancellor of the Rajendra Prasad National Law University, Mrs. Santosh Man, Member Secretary, NALSA, representatives from the bar, advocates, judicial officers, law students, and faculty. Ladies and gentlemen, it is truly a privileged moment for me to address you all on this auspicious occasion of this regional event, Hamara Samvidhan, Hamara Samman campaign, as we commemorate the 75th year of India as a republic. This day, infused with significance and pride, not only celebrates our journey as a sovereign democratic republic, but also underscores the enduring strength of our constitution, the cornerstone of our democracy. This campaign is not merely a government initiative, but it is also pledged to uphold the ideals enshrined in our constitution and to ensure that every citizen of this great nation understands and cherishes the principles that guide our collective destiny. Let me begin with a very famous quote of Dr. B.R. Ambedkar, where he had cautioned us on working of a constitution. I quote, howsoever good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. Today, we gather in Sangam Nagari, Prayagraj, a city rich in history that played a pivotal role in India's struggle for independence. Numerous distinguished personalities from this city made significant contributions to nation building and drafting of the Constitution of India. The Constitution, even though inspired by various other constitutions of the world, is embodiment of those fundamental principles which Bharat as a nation has practiced since time immemorial. It is a living document that has guided us through challenges and responsibilities, shaping our identity as a nation committed to justice, liberty, equality, and fraternity. As we reflect on the past 75 years, we recognize the remarkable progress we have made as a nation, from striving for independence to becoming one of the largest democracies in the world. India has achieved significant milestones. However, our journey towards realizing the full potential of our Constitution is ongoing. We must continue to uphold its values, protect its sanctity, and ensure that every citizen can access justice and equality under the law. Being citizen of India, it is our fundamental duty to abide by the Constitution and respect its ideals. Being member of the judicial fraternity, the responsibility lies in higher degree on our shoulders to ensure promotion and protection of all constitutional ideals and values. These values are not meant to be adhered by state only, but these must be the way of our life and in day-to-day activities of every citizen. This campaign holds greater significance as it underscores the vital importance of ensuring that the constitutional education reaches every corner of our diverse nation, helping us bridge the gap between awareness and action.
As India commemorates its 75th Republic Day, हमारा संविधान, हमारा सम्मान serves as a timely call to action for citizens to engage with the Constitution, understand its significance, and actively uphold its value. It underscores the ongoing journey of India since adopting the Constitution, celebrating achievements while acknowledging persistent challenges like poverty. Our Constitution, drafted by visionary Dr. B.R. Ambedkar and adopted on November 26, 1949, transacts its role as a legal document. It is the soul of our nation. It enshrines the fundamental principles of justice, equality, liberty, and fraternity, which have guided India's progress and evolution over the past 7 decades. As guardians of this sacred document, it is our duty to ensure its values permeates every section of our society, from the corridors of justice to the remotest villages of our country. The aim of this event is to remind us of our shared commitment to these principles and to celebrate the values that unite us as a nation. It provides an invaluable opportunity for citizens to deepen their engagement in our democratic journey, learning about their rights and responsibilities under the Constitution. This campaign also emphasizes the importance of increasing awareness of legal services and solutions, ensuring that every citizen has access to justice. It echoes Dr. Ambedkar's profound words in the Constituent Assembly, where he described Constitution is not merely a lawyer's document, it's a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of the age. The campaign promises to be a vibrant and inclusive endeavor encompassing a wide array of activities throughout the year, from public outreach programs and cultural events to educational initiatives and social media engagements. This campaign aims to promote constitutional literacy and foster civic engagement among all segments of society. Special efforts will be made to reach rural and marginalized communities, translating campaign material into regional languages and organizing localized activities. As we celebrate India's journey through 75 years of republic, we must also acknowledge the challenges we face in upholding the Constitution's principles. Issues such as poverty and social inequality continue to test our commitment to justice and equality. Yet, through initiatives like Hamara Samvidhan, Hamara Samman, we reaffirm our resolve to confront these challenges with the spirit of our Constitution as our guide. Today, on this significant occasion, I would like to commend the Ministry of Law and Justice for their initiative, Nyaya Bandhu, aimed at extending pro bono legal services nationwide. This initiative is particularly crucial for economically disadvantaged and marginalized individuals who are unable to afford legal representation for their cases or legal proceedings. By fulfilling the constitutional mandate of providing free and competent legal aid, Nyaya Bandhu not only fosters a culture of pro bono legal services, but also establishes an effective framework for their dispensation across the country. This effort is also in line with Section 12 of the Legal Services Authority Act 1987, which aims to provide legal assistance to the weaker and vulnerable sections of society. Efforts toward achieving this goal include the High Court of Judicature at Allahabad registering willing advocates for Nyaya Bandhu initiative, details whereof has already been shared by our Registrar General. This registration and their acting as pro bono legal aid will ensure that beneficiaries receive the services of experienced lawyers at no cost, reflecting a growing interest in pro bono legal services day by day. I have also received feedback from advocates involved in the Nyaya Bandhu initiative who have lauded it as a valuable endeavor that allows them to serve rural and marginalized communities. This initiative has fostered public trust in the judicial system and has sensitized advocates to their duty of maintaining a humanitarian perspective
in today's fast-paced world. In conclusion, let us heed the call of Hamara Samvidhan, Hamara Samman as a collective call to action. Let us engage deeply with our Constitution, understanding its significance in our daily lives and committing ourselves to its principles. Together, let us build a stronger, more just and equitable India for generations to come, guided by the enduring spirit of our Constitution. Thank you. धन्यवाद। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है वी द पीपल, हम भारत के लोग। संविधान की शक्ति सीधा लोगों में निहित है। अब मैं लोगों के प्रतिनिधि कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध करती हूँ। हमारा संविधान, हमारा सम्मान, ये एक अभियान है जो 24 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुआ दिल्ली से, और इसकी शुरुआत की भारत के उपराष्ट्रपति जी हमारे माननीय धनखड़ साहब ने। उसके बाद एक रीजनल कॉन्फ्रेंस इसी अभियान की हुई राजस्थान बीकानेर में, जिसके मुख्य अतिथि थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ साहब। तीसरा ये कॉन्फ्रेंस कह दीजिए, सेमिनार कह दीजिए, सम्मेलन कह दीजिए, जो ये प्रयागराज में हो रहा है, ये हिस्टोरिकल है। ये शहर भी हिस्टोरिकल है और एक कार्यक्रम भी हिस्टोरिकल है। मुझे बैठे बैठे याद आ रहा था, दो हमारे माननीय जस्टिस बैठे हैं मंच पे, हमारे ऑनरेबल जस्टिस अरुण भंसाली जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हैं, और ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी जो जज भी हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यूपी सालसा के भी हैं। इन दोनों के ध्यान में भी लाना चाहता हूँ, ध्यान में सबके भी होगा कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ही था। इस संविधान पे 75 में ही सबसे ज्यादा चोट पड़ी थी, और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब का साहस संविधान पढ़ाते हुए सब याद करते हैं, ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, उनको भी हम इस मंच से याद कर रहे हैं। और ये चेक एंड बैलेंस देखिए आप, संविधान का ताकत, कोशिश जरूर हुई होगी कि संविधान पे कुछ आघात हो, लेकिन मैं ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा साहब और ऑनरेबल जज HR खन्ना साहब को इस मंच से याद करता हूं कि संविधान का सम्मान उन्होंने बराबर रखा, और उसके बाद तो ज्यादा कोई इतनी चोट कर भी नहीं पाया। चेक एंड बैलेंस इस संविधान में ही है। मंच पर उपस्थित हमारे श्री राजकुमार जी गोयल, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, हमारे श्री नीरज गायकी जी, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हमारे मंच से अलावा भी जो गणमान्य अतिथि बैठे हैं वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी उनमें से हैं। ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा जी, ऑनरेबल जस्टिस संगीता चंद्रा जी, ऑनरेबल जस्टिस सरला श्रीवास्तव जी और ऑनरेबल जस्टिस गौतम चौधरी जी। नालसा की मेंबर सेक्रेटरी संतोष मान भी हमारे बीच में बैठी है। हमारे श्री संजय सिंह जी, मेंबर सेक्रेटरी यूपी सालसा भी बैठे हैं। दिनेश कुमार गौतम जी भी हैं, और हमारे राजीव भारती जी भी हैं, और राजेंद्र जी भी हैं जो हमारे वाइस चांसलर हैं, और हमारे शशि
प्रकाश सिंह जी भी हैं जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। ऐसे ताली बजानी तो बजा दीजिए, 2-4 शशि जी को भी कभी जाते ही रहते हैं। और भी काफी हमारे जुडिशरी से संबंधित डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी बैठे हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी हैं, स्पेशल जज भी बैठे हैं। मैं काफी, मेरे पास लंबी लिस्ट है। एडवोकेट भी सीनियर से सीनियर बैठे हैं। बार और बेंच का ये संगम इसलिए बोल रहा हूं कि ये नगरी का नाम भी संगम ही है, प्रयागराज। ये अच्छा संगम आज हमारे गोयल साहब ने करवा दिया। देखिए, प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है ना। कानून की नगरी तो है ये, लेकिन एक तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ये नगरी गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। त्रिवेणी संगम, और संविधान में त्रिवेणी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसलिए स्थान सही सुना ना। और ये नगरी महान देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की बलिदान की भूमि भी है, इसलिए भी मैं सैल्यूट करता हूं, भूमि को सैल्यूट करता हूं। एक प्रसिद्ध छायावादी कवि व राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पेशी धरती से। आप सबको मैं प्रणाम करता हुआ मेरी बात प्रारंभ करता हूं। मुझे कोई लंबा भाषण नहीं देना। मुझे कहा गया है कि हमें इस प्रोग्राम को 6 बजे तक समाप्त करना है। देखिए, आज एक अच्छा काम हुआ कि हम एग्जैक्ट 5 बजे आगे थे। कुछ ठीक लगा क्या आपको? तो ये भी एक संविधान में प्रावधान है, कभी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो ना। हम बाहर कहीं जाते हैं विदेशों में, हम सीजे साहब से एक दिन जिक्र कर रहे थे कि क्या स्थिति रहती है। बोला सब समय पे आते हैं, कोई डिले होता है तो होता रहता है, काम अपने समय पे शुरू कर देते हैं। और हमारे यहाँ बोला लेट हो गए तो बोला क्या फर्क पड़ता है। बोला आई लेट कैसा है कि लेट कहाँ है, हम तो समय पे आए। बोले 1 घंटा लेट हो। बोला वो इंडियन टाइम है। ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान रखो। लेकिन आज इस प्रोग्राम में जो ध्यान रखा टाइम मैनेजमेंट का, इसके लिए हमने संविधान का भी सम्मान किया है, इसलिए आप सबको बधाई। और आप सब लोग पहले आगे थे, नहीं तो हम कई बार देखते हैं गोयल साहब कहते हैं साहब 5 बजे का टाइम दिया है, अभी 5:30 तक इंतजार करो। लेकिन आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमसे पहले आए हुए थे यहाँ सभा में, इसलिए आप अपने लिए जोरदार ताली बजाओगे। ऊपर से शुरू करो। अब 3-4 चीजें कह करके मेरी बात को मैं समाप्त करूंगा। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को सबने याद किया। एक चीज के लिए मैं याद कर रहा हूं, आपको बताता हूं कि जब उन्होंने संविधान बना करके तैयार कर लिया था तो उनकी एक लास्ट स्पीच है। वो स्पीच है 25 नवंबर 1949। हम संविधान को क्यों याद कर रहे हैं इस समय, और संविधान में क्या है, जनता को क्यों बताना चाहता है। इसमें स्टूडेंट भी, लॉ स्टूडेंट भी बैठे हैं, एडवोकेट्स भी बैठे हैं, जजेस भी बैठे हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स भी बैठे हैं, हमारे सिटीजन्स भी बैठे हैं, मीडिया के लोग भी बैठे हैं। क्यों याद करना चाहते हैं कि हम आसपास सब आजाद हुए। पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ, हम आजाद हुए। श्रीलंका थोड़ा पहले और आसपास का ही विषय है। आसपास हम दृष्टि डालें तो कहीं न कहीं थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको नजर आती है। कोई देश सैनिक शासन के अंदर में गया, कोई और कारण से प्रॉब्लम में आया, कहीं पे छोटा मोटा गृह युद्ध भी हुआ। हम क्यों सुरक्षित रहे? और हम सुरक्षित रह करके भी 75 साल में प्रवेश कर गए संविधान के गणतंत्र दिवस के रूप में। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, हम 75 साल में प्रवेश कर गए। हम क्यों सुरक्षित रहे? हमारे नागरिकों की किसने सुरक्षा की? तो अगर एकमात्र आंसर है तो है भारत का संविधान। एकमात्र आंसर, जिसके कारण सभी ने काम किया।
एग्जीक्यूटिव ने भी काम किया, लेजिस्लेटिव विंग ने भी काम किया, जुडिशरी ने भी काम किया, और फिर हमारा जो चौथा अंग बना प्रेस और मीडिया, उन साथियों ने भी काम किया, जिसके कारण हम आज तरक्की के राह पे हैं और हम विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। तो 26 नवंबर को संविधान सौंपा गया, लेकिन 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लास्ट भाषण बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का हुआ था, वो इतना शानदार भाषण था। वो लंबा भाषण है, लेकिन उसकी शुरुआत है वो ये है कि हम एक विरोधाभासी युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब वो विरोधाभासी युग क्या है कि 26 जनवरी 1950 को हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलेगी, एक वोट, एक पर्सन और वन वैल्यू, सेम वैल्यू भी उसकी एक, तो राजनीतिक समानता। लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी, राजनीतिक क्षेत्र में समानता रहेगी, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। ऐसे हम विरोधाभासी युग में 26 जनवरी 1950 को प्रवेश करने जा रहे हैं। ये सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता है उसको दूर करने का काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। आज मैं धन्यवाद देता हूं नालसा के साथियों, नालसा, डालसा, तालसा, तालुका तक पहुंच गई, सालसा स्टेट, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से कि हमारे एक ऐसा सेक्टर था जो ग्रे एरिया था। एक आदमी के पैसा है वो वकील कर सकता है, एक आदमी गरीब है वो वकील नहीं कर सकता। तो जो लीगल एड का कंसेप्ट आया और हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, तो हमारे एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश आए और एक पैनल को मैंने भी हेड किया। और जब उन देशों के प्रतिनिधियों ने, उसमें लॉ मिनिस्टर भी थे, उनमें जज भी थे, उन्होंने जब कहा कि लीगल एड के मामले में इंडिया वर्ल्ड लीडर है, तो मैं नालसा को आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शानदार काम किया। अभी हमारे आरजी साहब भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे, हमारे जस्टिस गुप्ता साहब भी इस चीज का जिक्र करते, कितने मामले निपटाए। ये जो दिशा पकड़ी है देश ने, ये समानता के जो असमानता है समाज में, उसको, उस गैप को कम करने की ये दिशा पकड़ी है, जिसका बाबा साहब ने कभी जिक्र किया था। और ऐसे ही मैं एक और उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं, वो भी बाबा साहब से जुड़ा हुआ है। हमारे संविधान की जब रचना हो रही थी तो ये कंसेप्ट लंबे समय से था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमारे यहां जब गणराज्य आया था वैशाली में, तब से था, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में था, बहुत से लोगों ने लिखा है, बहुत से विद्वानों ने लिखा है। लेकिन संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी कि पहले प्रोविजन जो लें हम कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिबर्टी लें क्या, तो यहां डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब खड़े होते हैं कि ठीक है 1789 से हम इसको ज्यादा पढ़ रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लेकिन ये हमारे भारतीय संस्कृति में पहले से ही। हम वैशाली गणराज्य से जब अध्ययन करते हैं, साउथ में जब जब हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सेक्टर पे कुछ राज्यों ने काम किया, उस समय ये विषय है, भगवान बुद्ध की शिक्षा में भी है। मेरे हिसाब से पहले आर्टिकल इक्वलिटी के आने चाहिए। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि कंसेप्ट तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का था, लेकिन आर्टिकल 14 पहले आया बाबा साहब के का। ये जानकारी है कि नहीं? आपको नहीं है या नहीं है कि बाबा साहब ने कहा इक्वलिटी पहले लाओ,
तो नालसा भी बाबा साहब का सपना ही पूरा करने का काम कर रही है। इक्वलिटी पहले लाओ, आप इस दिशा में आगे बढ़ो, पहले इक्वलिटी लाओ, फिर स्वतंत्रता अपने आप ठीक रहेगी। और जैसे हमारी संचालन करने वाली, मैं तो नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, अच्छा संचालन कर रही थी, हमारे जुडिशरी सी है क्या या एडवोकेट है, उनके लिए भी ताली बजा दो भी जोरदार। पहला शब्द प्रस्तावना में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तरक्की करेंगे, तब करेंगे जब बाबा साहब ने कहा समानता पहले भारत में आएगी। कई देशों में लिबर्टी महत्वपूर्ण है, हमारे यहां भी लिबर्टी महत्वपूर्ण है, लेकिन लिबर्टी का आर्टिकल बाबा साहब पहले लेकर के आए और उसके बाद नहीं, ये इक्वलिटी का आर्टिकल बाबा साहब पहले लेकर के आए और उसके बाद लिबर्टी का आर्टिकल है। ये संविधान की जब डिबेट अपन पढ़ते हैं तब पता चलता है कि संविधान निर्माताओं ने कितना गहन अध्ययन किया होगा भारतीय समाज का। इसलिए मैं इस मंच से जिन्होंने भी संविधान बनाने में, निर्माण करने में जिन महापुरुषों ने योगदान दिया है, उन सबको इस मंच से श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, इंक्लूडिंग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ही। एक चीज और उनकी याद आ गई, ध्वज कैसा हो देश का। बोल साहब है टाइम 2-4 मिनट, तो 6 बज गए वैसे तो, थोड़ा ध्यान रख रहा हूं मैं टाइम। 1 मिनट, ध्वज का विषय आ गया। ध्वज कैसा हो देश का, 3 रंग तिरंगा। वहां उसमें डॉक्टर कामत उस सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने कहा चरखा बीच में और डालो। अब बाबा साहब की उस ध्वज समिति के सदस्य थे, पटेल साहब भी थे और लोग भी थे। उन्होंने एक और विषय रखा जिसका बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा ये जो 24 तिलियों वाला चक्र है, इसको ले लेना चाहिए। चरखा आएगा तो लोग समझेंगे कांग्रेस का झंडा है, जबकि अधिकतर सदस्य कांग्रेस के थे, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को सब सुनते थे। उन्होंने कहा चरखा क्यों लेना चाहते हो, तो उन्होंने कहा नहीं वो तय हो गया, चरखा ही लेना है। ऊपर से बात हो गई, बोला क्यों लेना चाहते हो, क्या हम इसलिए लेना चाहता है चरखा चलता रहता है, चरखा चलता रहता है तो इस देश में लोग चेरी बेटी वाले सिद्धांत से चले, लगातार चले, काम करे। तो उन्होंने उस समय भी ये प्रिंसिपल दिया कि ये धम्म चक्र जो है इसमें 24 तिलियां हैं और ये तिलियां हर गुण को इंडिकेट कर रही है। इसमें दया है, करुणा है, निष्पक्षता है, तटस्थता है, ये सब गुण है इसमें, परोपकार की भावना है। तो ये 24 घंटे भी काम करेगी, 24 घंटे की भी याद दिलाएगी, चरखा 24 घंटे का काम करेगा, तो ये तिलियां 24 घंटे काम करने की प्रेरणा भी देगी। गुणों को भी जब नागरिक अपने विकास में, अपनी यात्रा में डालेंगे तो श्रेष्ठ नागरिक भी जब बनेंगे तो संविधान की भी वो रक्षा करेंगे और उनमें गुणवान जब नागरिक होंगे तो भारत भी आगे बढ़ेगा। ऐसा करके उन्होंने, आप देखना ध्वज को ऐसा देखना, ये तिरंगा पर कहते जरूर है 3 रंग है, लेकिन एक ब्लू रंग का चक्र भी है उसमें, है या नहीं है? देखा है क्या कभी? देखा है? अब ध्यान से देखना, वो जो ब्लू रंग का जो चक्र आया है, धम्म चक्र, अशोक चक्र के नाम से, वो बाबा साहब के कारण ही आया है और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनकी डिबेट है उसमें। ताली बजाओ तो जोर से बजा दो। अब मैं जो आज का अभियान है उसमें आप सब लोग आए, सबको भी धन्यवाद देता हूं और बहुत अच्छी चर्चा यहां हुई है। इस चर्चा को आगे भी ले जाना है कि हम संविधान की जब रक्षा करेंगे तो हम गवर्नेंस की भी रक्षा करेंगे। हम जब संविधान का जब सम्मान करेंगे तो हम इस देश में जो हमारा जो असमानता का कहीं न कहीं भाव है किसी भी क्षेत्र में, उसको भी दूर करेंगे। हम जब संविधान की रक्षा करेंगे तो हम हमारी स्वतंत्रता की भी रक्षा करेंगे
और हम जब संविधान का सम्मान और रक्षा करेंगे तो हम आपस में भाईचारा भी बढ़ाएंगे। इसलिए आज के अभियान के लिए मैं इतना ही मैं चाहता हूं कि आप जोरदार ताली बजा करके इस अभियान की जो हमारा तीसरा जो हमारा एक रीजनल कॉन्फ्रेंस के रूप में मान लीजिए, दूसरा ये रीजनल हुआ, पहला हमारा रीजनल बीकानेर हुआ और अभियान की शुरुआत हमारी दिल्ली हुई, चौथा हम एक कोचीन में करना चाहते हैं और एक श्रीनगर में और एक शायद हम ईटानगर में सोच रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि 3 तो मैंने अटेंड कर लिए, 3 और अटेंड करूंगा, लेकिन शानदार इलाहाबाद का ही रहने वाला है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। दिव्य सज्जनों, अब मैं न्याय विभाग के सचिव से सम्माननीय मुख्य अतिथि श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करने का अनुरोध करूंगी। ये चिन्ह संविधान की प्रतिकृति है। आइए जोरदार तालियों के साथ सम्मानित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। मैं सचिव जी से अनुरोध करूंगी कि सम्माननीय अतिथि श्री अरुण बंसाली जी को स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें। मैं सचिव जी से अनुरोध करूंगी कि UPSLSA कार्यकारी अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें। मैं सचिव जी से अनुरोध करूंगी रजिस्ट्रार इलाहाबाद उच्च न्यायालय श्री राजीव भारती जी को का अभिनंदन करें। जोरदार तालियां और धन्यवाद। मंचासीन सभी अतिथियों का धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के आज यहाँ उपस्थित हुए। और जैसे जैसे हम इस अद्भुत कार्यक्रम के अंत के करीब आ रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लें। आज इस दिन को संभव बनाने वाले आप सभी का धन्यवाद। और मैं अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए न्याय विभाग के संयुक्त सचिव नीरज कुमार ज्ञागी जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। यह मेरा सौभाग्य है कि इस समारोह में उपस्थित सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देने का अवसर मिला। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री संसदीय राज्य मंत्री श्रद्धेय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने न सिर्फ इस प्रादेशिक कार्यक्रम की परिकल्पना की पर प्रयागराज में ही करने का निर्देश दिया, जो आज फलीभूत हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण बंसाली जी का, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर इस समारोह की शोभा तो बढ़ाई ही, हमारा संविधान हमारा सम्मान इस मुहिम को एक नया जोश और ऊर्जा भी प्रदान की। धन्यवाद सर। धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता जी के, न्याय विभाग द्वारा चलाए गए विभिन्न जन सुलभ सेवाओं को जमीन पे उतारने पे उनका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा और हमें ऐसा विश्वास है कि वो हमें आगे भी मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ न्याय सचिव आदरणीय श्री राजकुमार गोयल जी का, जिनका मार्गदर्शन एवं सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा है। मेरा विशेष धन्यवाद उन सभी विजेताओं को है जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस समारोह में देश के कोने कोने से अपने परिवार के साथ उपस्थित होकर अन्य प्रतिभागियों के लिए एक मिसाल कायम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेंबर सेक्रेटरी नालसा का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद के पात्र हैं माइका प्लेटफॉर्म के हमारे सहयोगी, जिनके माध्यम से इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यहाँ उपस्थित सभी माननीय न्यायमूर्ति, अधिवक्तागण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र एवं फैकल्टी, वाइस चांसलर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, मीडिया, दूरदर्शन, कॉमन सर्विस सेंटर की टीम, उनके कार्यकर्ता, VLE, वो सभी कार्यकर्ता जो डिजिटली इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और सबसे अंत में एक्सेस टू जस्टिस की पूरी टीम का वो हर मेंबर जिन्होंने अपने निर्देशक श्री चंद्रा जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम के लिए अथक परिश्रम किया और उसे सफल बनाया।
मैं फिर से एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।